Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Legal Framework Governing Human Relations. This is basically the introduction session. Now, various topics to be covered in this session are the concept of human relation management, what is the focus of human relationship management department, activities of HRM, major trends affecting HRM, importance of HRM measurement, how HRM can be a competitive advantage, academic theories of HRM, business strategies and HRM are secondary considerations, the form of HRM strategies, why an organization should go for human resource planning, how can HR be applied, HRM in India, where from and where to, value of context of HRM in India, and finally, what are industrial relations. So let's get started. First of all, the basic definitions of human resource management. As its name suggests, human resource की management को ही हम human relationship management कहते हैं. It is basically the managing employees रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना इज ह्यूमन रिलेशनशिप management. Now, what is the key assumption in case of HRM? Now, the basic key assumption is employee are the most important assets of the organization. किसी भी एक business concern के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस एंड अनटिल अगर उनके ह्यूमन एसेट्स जो हैं इफ़ दे आर नॉट एफिशिएंट. Now, the policies and practices involved in carrying out the people or human resource aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding and अप्रेजिंग. सो बेसिकली HRM वो सारी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को लेनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू दी ह्यूमन रिलेशंस या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं. अब वो सारी पॉलिसीज़ हो सकता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, रिवॉर्डिंग से रिलेटेड हो या फिर फाइनली अप्रेजल से रिलेटेड हो ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली डील करता है उन सारे एस्पेक्ट से जो रिलेटेड है टू द ह्यूमन एसेट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. Now, the focus of human resource management department. Now, the main focus should always be maintaining and ideally expanding the customer base while maintaining and ideally maximizing the profit. So, basically जो main motive है किसी भी business firm का वो होता है कि वो अपने profit को maximize कर सके. कैसे maximize करेंगे? By maximizing their customer base. Customer base अब किस तरीके से maximize हो सकता है? It can only be maximized अगर customers जो है हमारे existing customers को हम सेटिस्फैक्शन देते हैं उससे कंपनी का एक ब्रांड नेम इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से और भी कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे एक बिजनेस फर्म के पास. सो बेसिकली कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है. नाउ टू मेक अ कस्टमर सेटिस्फाइड एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें अप टू द लेवल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज़ वाई HRM इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न. HRM as a whole lot to do with the focus regardless of the size of the business or the product or services you are trying to sell. हो सकता है आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर किसी भी साइज़ का अपना बिजनेस कंसर्न हो सकता है यू आर रनिंग अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड और मे बी यू हैव अ स्मॉल बिजनेस इन लोकल एनी ऑफ द सिटीज़ बट in any of the organizations there has to be the human relationships या human resource management. Why it is important? Just because कोई भी organization without human assets survive नहीं कर सकती. Finally अगर कोई काम ही नहीं करेगा so how a firm can survive? Then HRM is involved in managing the human resource with the focus on expanding customer base that gives profit to the company. So finally HRM का जो basic function है वो ये है कि किस तरीके से हम human resource जो है ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं ताकि फाइनली जो कस्टमर है कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे सके. Now, the various activities of human resource management. Basically, there are 5 different activities of HRM. First is the human resource planning. Human resource planning basically हम anticipate करते हैं फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी
कितनी डिमांड होगी प्लस सप्लाई क्या से होगी ह्यूमन रिसोर्स की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इसमें हम फॉरकास्टिंग करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ह्यूमन रिसोर्स। सो बेसिकली हो सकता है कि जब हम डिमांड की बात करते हैं, हो सकता है कोई रिटायर होने वाला है, या फिर हो सकता है देयर आर दी चांसेस कि every year this much of employees leaves your organization. Then the supply is basically कहाँ से आप human resource को अरेंज कर सकते हैं, उनकी सप्लाई आपको कहाँ से मिल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्लानिंग बोथ ऑफ दी थिंग्स। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक्स दैट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बोथ आर द सेम थिंग, बट देयर इज अ डिफरेंस। रिक्रूटमेंट बेसिकली मीन्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पब्लिसाइज करती है दैट देयर इज अ वैकेंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज मोटिवेटिंग अदर्स टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब ओपनिंग की एड न्यूज़पेपर में देखते हैं, यू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दिस इज रिक्रूटमेंट। वंस यू हैव अप्लाइड दैट प्रोसेस ओवर्स देयर एंड देन कम्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया है उनको स्क्रूटनाइज करना, फाइनली कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, फाइनल सिलेक्शन करना, ऑल these things are the part of selection process. So recruitment is basically a positive process because you are encouraging people to apply for a job, whereas selection is a negative process. Why? Because finally you will be rejecting all the undesired candidates. Then compensation and benefits. एक organization में अगर human मैन पावर जो है अपने अगर सर्विसेज रेंडर कर रही है, इन टर्न दे विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल कंपनसेशन या फिर अलग अलग और जो डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स हैं दे विल बी गेटिंग दैट। सो उस तरीके उन सब चीज़ों का प्लान करना कि बेसिक सैलरी कितनी होगी, उन्हें अलाउंसेस कितने दिए जाएंगे, प्लस इंसेंटिव्स अगर देने हैं तो कौन से होंगे, मॉनिटरी इंसेंटिव होंगे, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव होंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी taken care by human resource management. Then performance appraisals. Now if particular people are working in your organization, you need to keep a check कि perform किस level पे कर रहे हैं। In any of the departments of any sort of organizations, usually we have some pre-established standards. हर किसी person को वो established standards को first of all achieve करना होता है, and they should try to outperform those standards. Only then they can expect any sort of growth in that particular organization. So basically एक organization अपने different employees की performance को एक check रखता है. They keep on evaluating their performance. It could be semi-annually, annually or maybe the quarterly. परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करना इज परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. देन फाइनली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. डिफरेंट स्किल्स के लिए, डिफरेंट नॉलेज बेस इंक्रीज करने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस. Then major trends affecting human resource management. Now what are the various factors जिनकी वजह से HRM में different changes आ रहे हैं. First of all, the increased globalization of an economy. Economy का as a whole बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली अ टेंडेंसी जिसमें अब जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज हैं इन एंटायर ग्लोब, दे आर वर्किंग विद ईच अदर, दे आर हैविंग बिजनेस विद ईच अदर. नाउ देयर इज़ नो मोर रिस्ट्रिक्शन कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ही एक पर्टिकुलर कंपनी ऑपरेट कर सकती है. दिस इज़ बेसिकली द ग्लोबलाइजेशन. नाउ आवर इकोनॉमी इज़ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी. Now every other country's company can come into India and operate with Indian companies. They can have business transactions. So उसकी वजह से HRM में अब क्या ट्रेंड आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी जो है वर्कफोर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना. अगर ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो उन कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस जो वर्कफोर्स का कंपोजिशन है वो भी बहुत चेंज हो गया है. वर्क कल्चर एक कंट्री में अलग है, दूसरी कंट्री में अलग है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, स्पेशली इन HR इंडस्ट्रीज. देन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंजेस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दो तरीके के एनवायरनमेंट्स को एक्सपोज होता है. फर्स्ट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, अदर इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल बेसिकली ऑल दोज फैक्टर्स विच आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विच आर विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स से द प्रोडक्शन लेवल, R&D of an organization, finance department of an organization, all these variables are within an organization. So that is why they are considered as internal environment of an organization. On the other side we have एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सारे वेरिएबल्स जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के बाहर हैं, प्लस दे आर ऑल्सो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को यूजुअली हम स्टेप इन से एक्रोनिम से रिप्रेजेंट करते हैं. स्टेप इन बेसिकली स्टैंड्स फॉर
sociological environment, technological environment, economical environment, political environment, international and finally natural environment. तो इन सब का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है HRM पे. Then we have the need to be flexible in response to the business changes. Every business is an open system. It will keep on interacting with the external as well as the internal environment. So जब भी कोई different change आता है, कोई भी अगर चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, अकॉर्डिंगली बिजनेस कंसर्न को भी उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना होता है. सो बेसिकली वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने में HRM का बहुत बड़ा रोल है. देन इंक्रीज इन लिटिगेशन रिलेटेड टू दी HRM एंड फाइनली चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क फोर्स. जो बेसिक एक बिजनेस कंसर्न का वर्क फोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो गई. लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे फीमेल मैन पावर इतना नहीं था, वुमेन की जो परसेंटेज थी इन वर्क फोर्स वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट स्लोली एंड स्टडीली इट इज़ इंक्रीजिंग. एज इट इज़ इंक्रीजिंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी फैमिलीज़ का बदल गया, वर्किंग कल्चर बदल गया. सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग इन वर्क फोर्स. Now, what is the importance of human resource management? A good human resource practices help in the following ways to an organization. First, to attract and retain the talent. अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लगता है कि उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, they can easily attract that particular talent in their organization. For example, let's say TCS एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. नाउ इट हैज़ अ वेरी गुड ब्रांड नेम इन टर्म्स ऑफ HR. सो बेसिकली जब भी कभी उसमें वैकेंसी निकलेगी, अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स TCS. प्लस अ लॉट ऑफ policies are there in TCS because of which a person would like to remain in that particular organization. This is basically because of the HR practices of that company. Then train people for challenging roles. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई चैलेंजिंग जॉब लेना है, अनलेस एंड अनटिल हम उनको ट्रेन नहीं करेंगे, दे कैन नॉट डू दैट जॉब अप टू दी प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स. सो बेसिकली हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट वो चैलेंजिंग जॉब में आउट परफॉर्म कर सके. वो ट्रेनिंग हम दे पाएंगे विद द हेल्प ऑफ HRM. देन HRM हेल्प्स टू डेवलप स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. एक पर्टिकुलर पर्सन में कोई स्किल्स ऑब्सोलेंस ना हो जाए, या फिर ऐसा तो नहीं है चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से नए स्किल्स दिए नहीं जा रहे. अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है, in that case employees will not be able to give their 100% to an organization. So ऐसी एक सिचुएशन ना आए जहाँ पे स्किल्स ऑब्सोलीट हो गए हैं या कॉम्पिटेंसीज जो है अंडर डेवलप्ड है. इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए HRM कैन बी यूज्ड. देन HRM की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन टीम स्पिरिट को प्रमोट कर सकती है. एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल्टी को डेवलप किया जा सकता है, कमिटमेंट रिसीव किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ का, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ किए जा सकते हैं. फाइनली जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो सकती है विद द हेल्प ऑफ HRM. वी कैन कंडक्ट अ लॉट ऑफ सेशंस जिनसे मोरल बूस्ट हो एम्प्लॉयज़ का. देन वी कैन गिव देम डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स जिनसे वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें. एंड फाइनली दे विल फील सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब. देन वी कैन एनहांस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड फाइनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Now HRM has competitive advantage. Now first of all, what is competitive advantage? जब कभी दो फर्म्स का कंपटीशन या दो से ज़्यादा फर्म्स का कंपटीशन है, ऐसा क्या एक पर्टिकुलर एडवांटेज है एक फर्म के पास जिससे वो उस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ फर्म्स कैन अचीव कॉस्ट लीडरशिप थ्रू द यूज ऑफ इफेक्टिव HRM प्रैक्टिसेस. एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन कर सकती है इफ़ दे हैव इफेक्टिव HRM प्रैक्टिसेस. जितना ज़्यादा HRM होगा अच्छा कंपनी का, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी. जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी पर यूनिट कॉस्ट उतना ही कम पड़ता जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है एक बिजनेस कंसर्न की. HRM costs through recruitment, selection, training and compensation are all big expenses for a firm. Service industry 70% of their budget is made up of payrolls. So companies are also spending a lot of funds on HR functions. For example, सर्विस इंडस्ट्री में 70% एक कंपनी का जो बजट होता है वो पे रोल्स सैलरी पे ही इन्वेस्ट होता है. बट इट इज़ ऑल वर्थ इट. वाई? बिकॉज फाइनली दे कैन हैव दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज so as to survive in the competition. Now indirect impact कौन सा होता है HRM practices का? फर्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड आउटकम्स. हो सकता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई सेंटर्ड आउटकम्स ऑर्गेनाइजेशन को मिले, या फिर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड आउटकम्स भी हो सकते हैं.
नाउ एम्प्लॉय सेंटर्ड आउटकम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ द कॉम्पिटेंसी, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, जो पर्टिकुलर जॉब में चाहिए उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम KSA बोलते हैं, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। देन वी हैव मोटिवेशन, मोटिवेशन बेसिकली विलिंगनेस एक पर्टिकुलर पर्सन में एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। सो मोटिवेशन इज़ द एम्प्लॉय विलिंग टू एक्सर्ट नेसेसरी एफर्ट टू परफॉर्म दी जॉब वेल। अगर आप में वो मोटिवेशन नहीं है, यू विल नेवर डू योर वर्क एज इट वॉज रिक्वायर्ड। सो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HRM। देन वर्क रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन लेवल है, कमिटमेंट है टूवर्ड्स जॉब, या फिर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ एक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, ऑल दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय HRM। देन एम्प्लॉय सेंटर्ड आउटकम्स, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड आउटकम्स भी हो सकते हैं। नाउ एम्प्लॉय सेंटर्ड अगर हम बात करते हैं तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड आउटकम्स हो सकते हैं। सपोज द आउटकम एम्प्लॉय रिटेंशन कैसा है, लीगल कंप्लाइंस, जितने भी डिफरेंट लॉज दिए गए हैं रिगार्डिंग HRM वो सारे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, कंपनी की अपनी रेपुटेशन कैसी है, इमेज कैसी है, रिटेंशन लेवल कितना है एम्प्लॉयज़ का। रिटेंशन रेट्स बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्न ओवर अ फर्म एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा एट्रीशन रेट होगा एक कंपनी का उतना ही कम रिटेंशन रेट होगा। एट्रीशन रेट इज़ बेसिकली कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर पीरियड में छोड़ के जा रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड आउटकम्स आर बेसिकली रिटेंशन रेट्स जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कैसा है। सो अगर ज़्यादा रिटेंशन रेट है इट इज़ फेवरेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टर्नओवर उस केस में कम है, लीगल कंप्लाइंसेस ढंग से हो रहे हैं, कंपनी की रेपुटेशन ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। अब एम्प्लॉय रिटेंशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हम एम्प्लॉय को दे सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ वी कैन गिव देम। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव देम डिफरेंट स्किल्स, या फिर हम उनको डिफरेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं जिससे वो हायर लेवल का काम भी सीख सकें, सो दैट इन फ्यूचर दे कैन टेक अवे दैट पर्टिकुलर पोस्ट। देन वी कैन गो फॉर फेयर पेस, जितना काम किया जा रहा है अकॉर्डिंगली वी कैन गिव देम द पे। देन कंपनी प्राइड एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय को और एम्पावर कर सकते हैं, उन्हें और पावर दे सकते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली दे कैन टेक डिफरेंट स्टेप्स, दे कैन टेक डिफरेंट डिसीजंस। उनको फ्रीडम दे देनी चाहिए डिसीजंस लेने के लिए। हाई इन्वॉल्वमेंट HR सिस्टम्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी हम HR का जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनका एक से हो सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड आउटकम्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन वे टू कट HRM कॉस्ट इज टू एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस सम ऑफ द मोर expensive HR professionals delivered services. So basically what we can do, we can go for ऑनलाइन सर्विसेज, वी कैन एम्प्लॉय डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ उन सारी सर्विसेज को रिप्लेस करने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रही है एक पर्टिकुलर कंपनी। देन लो टर्नओवर एम्प्लॉयज़ यू विल हैव बेटर कस्टमर रिटेंशन। जितना कम टर्नओवर होगा एक पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉयज़ का उतना ही ज़्यादा अच्छा बेटर कस्टमर रिटेंशन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में वॉक इन करते हैं, वंस यू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव वंस और ट्वाइस, आपका एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो जाता है, एक इमेज बिल्ड हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंक में जाएंगे यू विल बी लुकिंग फॉर दैट फेमिलियर फेस जिनसे आपने लास्ट 2 टाइम से ट्रांजेक्शन्स कराए थे, बिकॉज यू मस्ट हैव बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ रेपो विद दैट पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव। नाउ लेट्स से उस एक बैंक में अट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा था, एवरी नाउ एंड देन एग्जीक्यूटिव्स वर लीविंग दैट जॉब। एवरी टाइम यू वॉक्स इन द बैंक आपको कोई नया फ्रेश फेस देखने को मिलता है, यू कैन नॉट हैव दैट रेपो विद दैट न्यू फेस। सो फाइनली कस्टमर का जो रिटेंशन है वो भी बहुत कम हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ HR इज लेस सस्पेक्टेबल टू imitation, therefore competitive advantage achieved through HR practices is likely to be more sustainable. बेसिकली जितने भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं यूजुअली अलग अलग जो कंपनी जिनमें कंपटीशन हो रहा है दे इमिटेट ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिससे आई कैन प्रोड्यूस मोर लेवल ऑफ आउटपुट एज कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर, after a particular point of time even my competitor would get the same kind of technologies. But when we talk about HRM as competitive advantage, it is not easy to imitate the HR practices. So HR practices जो है बहुत ज़्यादा sustainable competitive advantage होती हैं। competitors rarely have access to the firm's HR practices. जो आपके competitor हैं शायद उन्हें कोई पता भी नहीं चल पाएगा कि ऐसी कौन सी HR policies हैं आपकी जिसकी वजह से you are doing quite well. And if suppose
पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर प्रैक्टिसेस पता चल भी जाती हैं, जो फाइनल इम्पैक्ट होता है उन प्रैक्टिसेस का वो हो सकता है कॉम्पिटिटर्स में उतना फेवरेबल ना हो जितना आपकी कंपनी के केस में फेवरेबल है. नाउ व्हाट इज़ द एकेडमिक थ्योरी ऑफ HRM? The basic premises of the academic theory of HRM is that humans are not machines. जो basic assumption है academic theory of human relationship management का वो ये है कि जो human resource हैं एक organization के वो कोई factor of production नहीं है. They are not machines. They are after all human beings. Therefore, we have to go for the interdisciplinary examination of people in the workplace. Interdisciplinary examination लेना चाहिए लोगों का in a particular workplace. इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली मीन्स अलग अलग डिसिप्लिन के डिफरेंट हमें आउटपुट्स मिले हैं. फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी. इन सब का कुछ कंट्रीब्यूशन है HR में. सो इन सब कंट्रीब्यूशंस को वी नीड टू understand if we are dealing with academic theory of human resource management. Now there is one important theory, that is critical theory. Critical theory is basically वो सारे critics, वो सारे HRM के जितने भी critics हैं, दैट्स HRM सफर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं इन अ क्रिटिकल थ्योरी. सो बेसिकली दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी, academic theory as well as critical theories. Academic theory talks about the importance of considering human resource as humans, while critical theory talks about the limitations, the sufferings if a particular concern considers human resource management as humans. Then business strategies and human resource management. Now strategic human resource management is the practice of aligning business strategies with that of HR practices to achieve the strategic goals of the organization. इसको हम SHRM भी बोलते हैं. Basically different strategies जब हम HRM के लिए follow करते हैं, that is basically called the strategic human resource management. इसमें हम जितने भी बिजनेस कंसर्न की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो HR के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसे हम अचीव कर सकें. जो मेन गोल होता है SHRM का वो होता है कि जितनी भी HR की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इट शुड नॉट अ मीन्स बट एन एंड इन इटसेल्फ एज फार एज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न, सो दैट जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं HR की वो सारी फाइनली कंट्रीब्यूट करनी चाहिए टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Then the idea behind SHRM is that companies must fit their HR strategies within the framework of overall business objectives. SHRM को जो बेसिक आइडिया वो ये है that companies should have the proper sync between the HR strategies and the overall business objectives. तभी इन दोनों की इंटीग्रेशन इफेक्टिव हो पाएगी एंड तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे एक बिजनेस कंसर्न अचीव कर पाएगी. देन HRM अ सेकेंडरी कंसिडरेशन. अब कुछ केसेस में HRM को एक सेकेंडरी कंसिडरेशन मिलता है. देयर आर सम थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है in terms of HRM. Now the business strategies which take precedence when board of company meet are, जब भी पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ कंपनीज की मीटिंग होती है, देयर आर सम इश्यूज जो HR से पहले आते हैं. वो ऐसे कौन से इश्यूज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दी फाइनेंस ऑफ द कंपनी. एक कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती अगर उनके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है, बिकॉज फाइनली उन्हें फाइनेंसेस की ज़रूरत है टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ऑपरेशंस. अगर वो HR को भी हायर कर रहे हैं उन्हें पे देनी पड़ेगी HR रिसोर्सेज को. सो फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect, the most important topic when a business concern will conduct the board of companies meeting will be the finances of the company. Then company competitiveness and the positioning. Finally company अपने competition में कैसे survive करेगी, एक market में उनकी positioning किस तरीके से हो रही है. Finally product and market development. पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप होगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा. ओनली देन वी कैन टेल द ह्यूमन रिसोर्स पीपल दैट दे आर सपोज टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट श्योर कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट किस तरीके से डेवलप करनी है, वी कैन नॉट असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़ टू ह्यूमन रिसोर्स. Now matters related to the labor force may be lower down on the agenda rather than being front running items unless they are cost cutting items. So usually HRM का तब second considerations हो जाते हैं जब एक कंपनी में मीटिंग में वो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं जिनसे कॉस्ट कटिंग
हो सकती है। अनलेस एंड अनटिल HR कोई ऐसा एडवांटेज सर्व नहीं कर रहा जिससे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, तब तक उन्हें सेकंड कंसिडरेशन ही दिया जाता है। येट मैनेजर्स मे एंडेवर टू डिफाइन HRM स्ट्रैटेजीज पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज अ बिलीफ that investment in the quality and enthusiasm of the workforce will add to the competitiveness, quality and overall business performance. So managers लेकिन बहुत strongly ये believe करते हैं कि कुछ cases में अगर HRM strategies effectively बनी हुई हैं, हम उसमें अगर proper investment करते हैं तो finally effective HRM से एक competitiveness भी increase हो सकती है, quality भी increase हो सकती है, plus overall business performance भी increase हो सकता है. So still there is a lot of scope of HRM in an organization. It is a lot of importance in an organization. Now what is human resource planning? जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली जब आप फ्यूचर के इवेंट्स को एंटिसिपेट करते हैं प्रेजेंट में कि किन किन रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या क्या सप्लाई हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के एक ऑर्गेनाइजेशन में. सो फर्स्ट दी एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. Now, by the process of human resource planning, the company is able to find out how many people will be required in the future. कमिंग जो नेक्स्ट फ्यूचर है उसमें कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी एक बिजनेस कंसर्न को, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एस्टिमेट की जाएंगी अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे हम फ्यूचर एक्शंस जो है प्लान करेंगे. एक कंपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन को उस टाइम भी यूज़ करती है जब उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है कि कितनी जॉब्स जो है नियर फ्यूचर में वेकेंट हो जाएंगी जिन्हें उन्हें फिल करना पड़ेगा. Then we'll be going through the recruitment and selection process. Now the recruitment and selection process is a very costly affair for a company. Company को अपने ads देने पड़ेंगे. They'll be conducting the various rounds of interviews. Final selection होगा. Lot of formalities will be there, or a lot of time consumption process will be conducted. So recruitment and selection is a costly affair for the company. Now many companies spend lakhs of rupees on this process. एक कंपनी में lakhs of rupees spend किए जाते हैं on recruitment and selection. So it is very important to keep a right track of recruitment and selection. जो HRB का process है basically वो help करता है identify करने में कि necessary है या फिर नहीं external selection करना. Then placement of personals. Since the HRP process is conducted for the entire organization, we can identify the requirements for each and every department. HRP ऐसा नहीं है कि particular department के लिए होता है या फिर particular level के लिए होता है. When we talk about human resource planning, it is for the entire organization. It covers each and every department. So with the help of HRP, we can easily identify कि कहाँ कहाँ पे human resource की requirement है. अकॉर्डिंगली सिलेक्शन के बेसिस पे हम उन वेकेंट पोजीशंस को फिल कर सकते हैं. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. नाउ HRP मेक परफॉर्मेंस अप्रेजल मोर मीनिंगफुल. सिंस फीडबैक इज प्रोवाइडेड इन परफॉर्मेंस अप्रेजल्स एंड एम्प्लॉय इज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज फ्यूचर चांसेस इन सेम कंपनी, द एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड टू वर्क बेटर. बेसिकली जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दिया जाता है कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वो लैग करते हैं या फिर ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसके बेसिस पे दे विल बी going to be promoted in the higher hierarchy of the organization. So basically ये सारी चीज़ें they are of immense help in HRP processes. Then promotion opportunities. HRP में हम जितनी भी हमने वैकेंसीज आइडेंटिफाई की हैं, जितनी पोजीशंस आइडेंटिफाई की हैं जो वेकेंट होंगी नियर फ्यूचर में, उनको हम विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन प्रमोट करके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को हम वो पर्टिकुलर सिचुएशन को पोजीशन को फिल कर सकते हैं. Now how can HRP applied in an organization? वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो HRP करना चाहती हैं बेसिकली दे आर दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज. जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाना चाहते हैं. एजम्पशंस जो हैं इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रिकॉग्नाइज करती हैं फ्लूइडिटी अराउंड द स्किल्स विच अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी, देन विच आर सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज एंड विच आर नॉट टू टाइम डिमांडिंग. Then to operate such systems, organizations need appropriate demand models. चाहिए HRP करने के लिए there are various quantitative as well as qualitative models. Then good monitoring होनी चाहिए. अगर एक business concern इतने सारे funds block कर रही है for human resource planning, so there has to be the proper monitoring, proper check कि सारे steps जो हैं, सारे जो funds हैं, जितनी activities जो होनी चाहिए वो ठीक हो रही हैं या फिर नहीं हो रही, और अगर कोई deviation है, अगर कोई scope है improvement का, तो वो correction steps ले सकते हैं. देन कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है अबाउट द करंट एम्प्लॉयज़ और एक्सटर्नल लेबर मार्केट जहाँ से फ्यूचर में सप्लाई मिल सकती है ह्यूमन रिसोर्स की. देन अंडरस्टैंडिंग हाउ रिसोर्सिंग वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन.
Now, human resource management in India, where from and where to. Now, HR मैनेजर्स जो हैं एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, द यूज़ ऑफ वर्क फोर्स स्किल्स एंड एबिलिटीज़. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वर्कर को जो जॉब मिल रहा है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ द स्किल्स पोजेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर वर्कर. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर को चीज़ इंश्योर करनी चाहिए दैट पर्टिकुलर वर्कफोर्स को जो काम दिया जा रहा है, इट इज़ इन दी सिंक विद दी स्किल्स विच इज़ पोजेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर वर्कर. देन दी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंट ट्राई करते रहना चाहिए फॉर दी कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर फेज के बाद आके मैनेजर कैन डिसाइड कि इसके बाद क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है. देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. देन एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स. अगर कोई एम्प्लॉय आउट परफॉर्म करता है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिवॉर्ड दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. ओनली देन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड टू फर्दर वर्क आउट परफॉर्म. Then value of context of HRM in India. Now value and ethics basically guiding beliefs होते हैं. एक organization में भी values and ethics होते हैं. If we talk about values and ethics in HRM, it is very much related to each other because the company's main motive, company's goals are all same with each other. वैल्यूज़ एंड एथिक्स जो वर्क प्लेस में होते हैं, दे हैज़ टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. एक ऑर्गेनाइजेशन में दे शुड change with the change in the culture in the organization. It should remain constant when it gets continued by the management hierarchy, because it provides the continuation of management and it goes on and moves on as per the levels of management. Now what are industrial relations? Industrial relations उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, वो सारे फिनोमिनन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या फिर बाहर हैं, जो बेसिकली कंसर्न्ड होते हैं विद द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसे किस तरीके से डिटरमाइन करना है, रेगुलेट कैसे करना है, वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ और अमंग एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस are the basic concern of industrial relations. Now these are some of the questions for your practice. First of all, what is the focus of human resource management department in an organization? Basic focus, main objective क्या है HRM का? Then how would you retain your highly skilled staff? एक organization में highly skilled staff को आप कैसे retain कर सकते हैं? That's all about this session. Thank you.